We are going to start with a new chapter in political science, and the name of the chapter is Gender, Religion and Caste. And remember, ये जो chapter है, this is slightly sensitive chapter. Secondly, this chapter is board के according, it has a good weightage. 5 marks का question आप इसमें से आराम से expect कर सकते हो. Means a 5-marker question is there from this chapter. And third is, it is dealing with 3 different diverse issues. So before we start the chapter, let me tell you, हमारा जो chapter का नाम है वो है Gender, Religion and Caste. Right? तो before that, हम लोगों ने 9th standard से एक चीज पढ़ी थी, that India has adopted a democratic system. हमारा जो सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस वो है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का एक मीनिंग है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, विच इज अ डेफिनेशन. लेकिन democracy also needs to look into the different diverse activities in the country. डेमोक्रेसी तभी जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कहलाएगा if it is able to deal with all the diverse situations. Now what is the meaning of diversity? एक आपका चैप्टर है वो डिलीट हो गया है, and that chapter is डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का एक चैप्टर है जिसमें ये भी बताया गया है we all are different. Diksha, I, you, all in the world are different. Even I and my mother are not likewise. आप अपनी मम्मी जैसे नहीं होंगे. किसी किसी चीज में आप अपनी मम्मी से बिल्कुल डिट्टो होंगे तो किसी में आप बिल्कुल भी नहीं होंगे. In the classroom, you may be having students who are having the same kind of liking. मतलब सभी जो लोग हैं वो लोग सब जो है they might be reading the same kind of books, they might be watching the same kind of movies. On the other hand, there might be, उन्हीं में से आप ही का ग्रुप है, 4 बच्चे हैं, मतलब आप हो, आपके साथ में आपके 2-3 हैं, 4 बच्चे हैं, सबकी लाइकिंग्स हो सकती है, एवरीबॉडी लाइक्स धोनी, लेकिन उन्हीं में से 2 जने ऐसे होंगे जिनको शाहरुख पसंद होगा, 2 जने ऐसे होंगे जिनको सलमान पसंद होगा. Not what does it mean is we are not alike. But on the other hand, if we look into the social diversity, ये तो हमारा था by birth. अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम में से कोई जो है वो the person has been born into rich family, some have been born into some other family, कोई तमिलनाडु में पैदा हुआ है, कोई केरला में पैदा हुआ है. Someone is belonging to what we have made it, an upper caste. Someone is born in the lower caste as per the government. Someone has been born to Hindu, someone has been born to a Muslim mother. Someone is male, someone is female. जो ये चैप्टर है वो यही है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट. ये इनमें से जेंडर हमारा बाय बर्थ है, बट रिलीजन और कास्ट जो है दे हैव बीन मेड बाय द सोसाइटी. And when a government is in democratic setup, they cannot ignore the rights of a particular gender, religion or caste. तो क्या करता है हमारा गवर्नमेंट, मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऐसा क्या करता है कि एवरीबडी फील्स इक्वल. That is the chapter. So we are starting the chapter with
my written notes for the very first time as a part of our summary, and then we will be doing the same thing along with NCRT. The chapter is, as I have repeatedly said, the chapter is bit tricky. The very first in our country, हमारी country में तो specifically, I don't know about other countries, but हमारी country के अंदर we have divided the work on the basis of gender. आपके पेपर का क्वेश्चन है ये. दिस इज मैं एक एक क्वेश्चन को बताती जा रही हूँ. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, जितने भी हमारे घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, सिलाई कढ़ाई, एवरीथिंग इज टू बी डन बाय द गर्ल्स. हम तो ये भी बोलते हैं, अगर लड़का रोता है तो बोलते तो लड़की है क्या जो रोता है. And all the work which are done outside, और जहां आपकी कमाई है, हम उसको लड़के के लिए मानकर चलते हैं. हम मानकर चलते हैं. इट इज वी हैव डिवाइडेड. इट इज नॉट गॉड हैज डिवाइडेड. एंड अगर लड़कियां या फिर कहीं विमेन काम भी करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर दे वर्क इन सम एरिया जैसे डोमेस्टिक हेल्प, कुछ टीचर्स हैं, कुछ आपके ऑफिस में हैं. बट इफ यू सी द इक्वालिटी, वो नहीं होगा. अगर कहीं पर 100 इंसान काम कर रहे होंगे तो उसमें से 90% आपके बॉयज होंगे, ओनली 10 गर्ल्स होंगी. अभी रिसेंटली आई हैड एन इंटरव्यू अबाउट अ पर्सन. तो दैट पर्सन वाज टेलिंग मी, या मेरे मतलब कि एक फ्रेंड का ही बेटा था. ही टोल्ड मी कि उसके कॉलेज के अंदर, एसआरएम के अंदर, मैकेनिकल में there were 200 students and out of that 198 were boys. He was in SRM campus. Just अभी संडे को ही मतलब हम I met him. Why? Because we have made it that mechanical तो लड़कियां नहीं कर सकती. फ्लोर वाले जो काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो लड़कियों के लिए नहीं होता है. दे आर सटल. And if a girl, if a boy is doing any household work, we tell them क्या लड़कियों के जैसे काम कर रहा है, तेरा काम है ये काम करना. And this is how we have divided the work, जिसको हम बोलते हैं sexual division of labor. यानी कि dividing the work on the basis of our gender. आपके पेपर का 3 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है. इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है आप देखो. प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप विमेन के पार्टिसिपेशन को देखोगे इन पॉलिटिक्स, इन पब्लिक प्लेसेस, अगर एज आई सेड इफ देयर आर 10 पीपल इन एन, मतलब की है तो उसमें से 9 बॉयज होंगे. इट इज लिमिटेड. एंड यू नो यू ऑल आर इन क्लास 10. एक आयरॉनिकल सिचुएशन रहता हमारे हिंदुस्तान में हर साल. एवरी ईयर व्हेन यू आर हैविंग योर एग्जाम्स, आप मानोगे नहीं, एवरी ईयर व्हेन देयर इज सीबीएसई एग्जाम, गर्ल्स टॉप करती हैं. Means the first top 3 positions are always acquired by girls. और जो पास परसेंटेज होता है, मतलब अगर बॉयज 1 लाख बॉयज ने दिया है तो 70% बॉयज पास होते हैं एंड गर्ल्स में हमेशा 80% गर्ल्स पास होती हैं. उसके बावजूद अगर हम देखेंगे 11th में 12th में द चिल्ड्रन हु आर गोइंग ऑन टू टेक्निकल फील्ड आपके कम हो जाते हैं. हार्डली कैन आई सी स्टूडेंट्स हु आर इनटू पीसीएम, पीसीबी में जाएंगे. देन आई हैड वन स्टूडेंट, बहुत 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 इंटेलिजेंट गर्ल थी. द गर्ल वाज सुपर इंटेलिजेंट. आई डोंट रिमेंबर द नेम, उन्नति आई थिंक. And in 10th standard, as desired, she got 97%. I think she was in with this somewhere in Greenfields or something like that. Now when she got, तो natural है कि उसको जो है साइंस ले लिया उसने.
But when she took science, as I'm a counselor, so I told her to take only limited subjects. मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ, और होता वही है, 10 में से 2 बच्चे मेरा कहना मानते हैं. She took PCMB हिंदी, उसके स्कूल के अंदर उसका हिंदी भी था, PCMB था. एंड आई आस्क्ड हर व्हाई आर यू टेकिंग. तो उसने कहा कि मैम सी आई वांट टू बिकम अ मतलब माय फादर हैज सेड यू हैव टू बिकम अ टीचर, बट एट दिस 11th and 12th you have to study all. And I was literally, मैंने कहा ये क्या पागलपंती है. I tried to convince her mother also. उसकी मदर ने कहा मैम my husband doesn't agree with this. Next year उनका बेटा, he came into 10th standard, he also got the same percentage, but he took only PCM. Today he is doing engineering and Unnati is doing BA English. Why? Because पेरेंट्स का मानना है कि भाई टीचिंग में जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उसके बाद आप सिर्फ घर के देखभाल करो. दिस इज हाउ वी डिस्क्रिमिनेट. वी में हमारे लिए हमें लगता है कि गर्ल्स का पब्लिक अच्छे उसमें रहना, पॉलिटिक्स में आकर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना, इट्स नॉट गुड. इन मेनी कंट्रीज, सब कंट्रीज में ऐसा रहा है. इवन इन फ्रांस ऑल्सो the women got the right to vote in 1946. In many countries the women had fought and they got the equal political rights. They demanded equal opportunities. ऐसे कई लोग हैं जो विमेन को बराबरी का मतलब होता है इन ऑल द एरियाज. खाना बना रहे हो, दूसरा एक सफाई. इफ यू गो अब्रॉड you will see people are working on their own. There is nothing like ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता. You will feel equality. They don't मतलब कि डिस्क्रिमिनेट. एंड ऐसे कई लोगों ने ऐसे मूवमेंट्स लिए हैं जिनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट movements. And this is a one marker question in your book. It is written in the right side, आपके नीचे बॉक्स बना हुआ है. And if you see women's presentation in the world, ये आपका MCQ में आया था ये वाला क्वेश्चन एक बार. In some countries आपके that is नॉर्वे, स्वीडन, इन जगहों पर जो है आपका काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है. In America it is around 29.5, but in India if you see the table it is only 11.8%. मीन्स इतने ही औरतें आपकी पब्लिक फिगर या पॉलिटिकल फिगर्स में आती हैं. इवन इफ यू सी सम लेडीज हु आर चीफ मिनिस्टर, जो कि अपने जमाने में चीफ मिनिस्टर रही, जैसे तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर मतलब की सॉरी मिस जयललिता रही, मायावती रही यहाँ पर. बट उनके नीचे जो काम करते हैं अगेन दे आर मेन. दिस अभी जो करंट मतलब की है वो उस गवर्नमेंट ने जो है दे हैव टू सम एक्सटेंट दे हैव गिवन सम पोर्टफोलियो. बट हम जब आगे ही नहीं जाएंगे तो कोई हमें पोर्टफोलियो क्या देगा. इन इंडिया आपके पेपर का एक क्वेश्चन है, देयर इज वन बिल, एक बिल पास हुआ है, रिजर्वेशन बिल. एंड अगर ये जो रिजर्वेशन बिल है ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, ये पास हो चुका है, ये अगर इम्प्लीमेंट होगा तो the women will be getting equal what we call as seats in Lok Sabha. मतलब अगर 240 seats है तो 120 for women and 100, and this will be done in a circle. मतलब एवरी ईयर नहीं होगा, एवरी 5 ईयर नहीं होगा, हर 2 साल में, मतलब हर 2 इलेक्शंस में एक बार देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन. बट अभी तक ये जो बिल है it has been passed but it has not been implemented.
नाउ यस, कुछ औरतें हमारी हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बहुत कुछ किया है। राइट नाउ हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, देन सुषमा स्वराज मैम थी, दे ऑल हैव डन एक्सीडिंगली वेल। बट कितने आप गिनो, दे आर ऑन आवर फिंगर्स। In Scandinavian countries like Sweden, Norway, and Finland, वहाँ women participation is good. This came in the 2014 में आया था ये वाला। And हमारे यहाँ we are having a patriarchal, आपके बुक का क्वेश्चन है, it is there in the बॉक्स। पेट्रियार्चल मतलब जहां जो फादर या हस्बैंड या घर में जो मेल मेंबर होता है उसको हम डोमिनेशन में लेकर आते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज ऑल फ्रॉम योर बुक ओनली। ये वाला जो मैंने लिखा है, विमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ये 2012 में आया था। हाउ स्टिल women face disadvantage, discussion and oppression। अभी भी अगर आप देखो जो मैंने अभी बताया कि गर्ल्स दे परफॉर्म बेटर, बट अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना, मतलब लुक इन टू द फिगर ऑफ एमबीए, लुक इन टू द फिगर ऑफ पीएचडीज, लुक इन टू द फिगर ऑफ व्हाट वी कॉल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे में अगर आप देखोगे अगर 100 लड़के हैं तो लड़कियां सिर्फ 2 या 3 होंगी। This is how the literacy rate for women right now is around 54, for male it is 76। Then अगर आप हाईली पेड जॉब में जाते हो, किसी भी कंपनी में देखो आप, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, दे आर ऑल मेन। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है, तो नाम के लिए एक फीमेल डायरेक्टर होती है बट शी डजंट पार्टिसिपेट। जहां आपके लेबर्स काम करते हैं, अगर आप बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड विमेन देखोगे, तो मेन को अगर 100 रुपए पर डे देते हैं तो विमेन को 80 रुपए दिया जाता है। आज भी इवन मूवीज के अंदर, लीविंग आई थिंक करीना कपूर एंड दीपिका पादुकोण, all the male actors get paid more and female get less। आज भी female infanticide is practiced। I have seen it with my own eyes। we have a family friend, they had 2 daughters, दोनों, और अभी just I met them and they were so proud of their daughters, but third time they wanted a boy and they got it checked, and I was literally, I was a teacher, मैं उन्हीं की बेटी की टीचर थी, so I was feeling very bad। infanticide मतलब गेटिंग द स्कैनिंग डन, और अगर लड़की निकलती है तो उसको पेट में ही मार डालना। आज भी डाउरी, व्हाई डू वी नीड डाउरी? व्हाट वाज डाउरी एक्चुअली? रीड आवर स्क्रिप्चर्स। डाउरी आपका होता था उस जमाने में, लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए the parents used to give them some money which was called as istri dhan, which she used when there was trouble। But when if you are getting your daughters educated, then why do you need to give a, क्या एक लड़का इतना भी नहीं है कि वो अपने लिए चप्पल, अपने लिए टीवी, अपने लिए कार और अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकता? बट नो, ना लड़के वाले ना लड़की वाले, आई एम नॉट टॉकिंग हियर, आई एम नॉट ब्लेमिंग हियर द बॉयज, आई एम ब्लेमिंग बोथ ऑफ द पीपल। मुंह फाड़ के लड़के वाले मांगते हैं और लड़की वालों को भी बड़ी खुशी होती है। इवन द गर्ल्स आर वेरी हैप्पी कि मेरे पापा मुझे गाड़ी दे रहे हैं। क्यों भाई, तुम अपनी कमाई से गाड़ी नहीं खरीद सकते? एंड उसकी वजह से क्या होता है? द एक्सप्लॉयटेशन गोज ऑन, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस।
दिस इज व्हाट आई सेड, इंडिया के अंदर जो है द बिल हैज बीन पास्ड बट स्टिल वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट। और अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा ना बेटा, जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे। तो डेमोक्रेसी का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वी नीड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉर्ट आउट करें यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। Now, the second one, religion. A very, very sensitive topic, I would tell 10th class. Aajkal, because I have to be very, I'm very scared while I'm teaching this chapter. Abhi to mere paas, with God's grace, I don't have students. I still cherish those days when I used to have 110 students in my class, out of which at least 20-25 students were Muslims also. Adil. I had number of students who are very close to me also. Now what happens is, इंडिया जब आजाद हुआ था, ना मैं थी ना आप थे, कोई भी नहीं था। जब आजाद हुआ था, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी, यू नो, अब हम 2023 में बैठकर ये नहीं बोल सकते हैं लाइक पीपल से इट वाज दिस पर्सन हु हैज मेड मिस्टेक्स। आई कैन नॉट से हु हैज मेड द मिस्टेक, क्योंकि हम उस सिचुएशन में ही थे। But yes, one thing what I have learned from my many of the people whom I have spoken, grandparents, मतलब in हमारे मोहल्ले वगैरह में, what I have seen is that कि there was a time when people used to stay together, but then जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, ये प्रैक्टिस हुआ एंड धीरे 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 एक नफरत लोगों के अंदर आ गया, विच वॉज कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। यानी कि एक नेशन को पीपल वांटेड टू रूल एज पर द रिलीजन, एंड ये जो रिलीजन के बेसिस पर जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, तो हिंदुस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड वी कॉल इट एज टू नेशन थियोरी। हम इसको टू नेशन थियोरी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, विच इज देयर इन 12th स्टैंडर्ड। एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द लीडर्स देन कि कुछ एरियाज विच वाज पार्ट ऑफ अमृतसर, पार्ट ऑफ आपका बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश है, उस वक्त में दैट वाज ओनली कोलकाता, some parts of Lahore that will be divided जहां मुस्लिम्स रहते हैं, that would go to a Muslim। This was because उस वक्त द नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम काउंट करते हैं तो द नंबर ऑफ people who were Hindus were more and Muslims were in minorities। माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिनका पॉपुलेशन में नंबर कम है, एंड एट दैट मोमेंट दे फियर्ड कि अगर ऐसा हुआ तो मे बी दे मे नॉट गेट द राइट्स। उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे एंड हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, they decided that they will try to accommodate the remaining people जो भी यहाँ रुक गए हैं from other communities by providing one safety, what we call as secular। Though it was done, but still हम लोग अभी भी communal politics में रहते हैं, which is wrong, which is wrong। I am a pure Hindu Brahmin and हमारे तमिलनाडु में we belong to the highest class, but I still as a teacher condemn this religion and politics। इनफैक्ट मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम लोग ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, बट हम इतना खुश होते हैं व्हेन वी आर मूविंग अब्रॉड, हम बाहर जा रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। व्हेन वी आर ईटिंग आउटसाइड,
पहले जमाने में सब कुछ चलता था, लोग बाहर नहीं खाना खाते थे। मेरी जो ग्रैंड मदर है, अभी हमारा फंक्शन हुआ था लास्ट ट्यूसडे, शी डज नॉट ईट आउटसाइड फूड। आउटसाइड मतलब वो मंदिर में प्रसाद को छोड़कर कुछ नहीं खाती है किसी के घर में। बट जब हम लोग बाहर जाते हैं, वी ईट एवरीथिंग। डू वी नो हु इज प्रिपेयरिंग व्हाट? मशीन में जब आटा पिसा था तो कौन था वहां पर? वाई डू वी पीपल? बट ऑफ लेट मैंने देखा है देयर इज लॉट्स ऑफ communal politics that would only divide. तो गांधी जी कहते हैं, ये पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है, religions can never be separated from politics. What is the meaning of that? Meaning मतलब हर religion, you take रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, Quran, anything, everyone says that be a brother to equal. We have derived all these from the religion only. But अगर ह्यूमन राइट्स की मानी जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो कहते हैं कि कुछ माइनॉरिटीज जो है दे हैव ऑलवेज बीन द विक्टिम्स। मतलब जब भी कोई कम्युनल रायट हुआ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही हमेशा मारे गए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हम हमेशा टारगेट करते हैं। And some of the family law, they discriminate women. So what do we need is let me come to this point. When we say communalism, means believing that my religion is superior to other, and उसके बेसिस पर हम जो है पॉलिटिक्स को चलाते हैं। यानी कि जो भी हमारे whatever, जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर all the whatever they took the privilege that was given to the Buddhist, that was given to the Sinhalese, because उन्होंने सोचा था कि सिंहलीज और बुद्धिज्म जो है इट इज सुपरसीडिंग। उसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं दे फील एजिटेटेड, और एजिटेशन जो है इट टेक्स द शेप ऑफ वायलेंस। इन एवरीडे बिलीफ हम स्टीरियोटाइप करते हैं, स्टीरियोटाइप कि एक जो रिलीजन है दिस इज बेटर, दिस इज बेस्ट, दिस इज लेसर। एंड जो कम्युनल माइंड होते हैं, कम्युनल माइंड वो लोग हैं, दीज आर ऑल बुक्स की ही लैंग्वेज है, नथिंग इज आउटसाइड, ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। जो कम्युनल माइंड्स है दे वांट कम्युनल पॉलिटिक्स, मींस दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, and then they use various symbols, जैसे हिटलर ने यूज किया था स्वस्तिका, रेड फ्लैग, they use various kind of symbols. Certain times they use various kinds of religious lines, किसी religious leader को अपना मतलब कि साथी बना देते हैं, and this sometimes leads to violence. आपका पेपर में एग्जाम्पल आया हुआ है, given in the book only, that is the partition of India into India and Pakistan. Now I'll tell you one more was there, which is not in the book, but yes, I have seen it. When Babri Masjid was demolished, then जो बॉम्बे में आपका कम्युनल रायट्स हुआ था, आई एम रीडिंग दैट बुक राइट नाउ, आजकल मैं वो बुक पढ़ रही हूँ। द बुक्स नेम इज आई थिंक डोंगरी टू something like that. It's Baikula to Bangkok. Yeah, this one. This is actually on the मतलब कि जो आपके वो है उसके ऊपर है, and this tells us about the communal riots that happened in, ये ओरिजिनल वो है। I was watching a web series Scoop, which is based on the murder of a journalist. तो उसी के साथ ही थे ये, तो he is a very well known
So this is all the real pictures from the D companies. तो जो ये communal riots होते हैं ना, certain times they are planned. But जब planning हो या unplanned हो, what happens? Lakhs of people lose their lives. Lakhs of people are maimed. उनको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं. A number of women become the victim of being raped. पार्टीशन के टाइम पे दोनों तरफ many women were killed, raped, converted into different religion, दोनों तरफ से. एंड कुछ जगहों पर तो पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को खुद ही मार डाला इस डर से. किसका फायदा हुआ कम्युनल पॉलिटिक्स से? नो वन. सो फॉर दिस, ये जो लिखा हुआ सेक्युलर स्टेट, बेटा दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बोथ्स. बाकियों में से, सारे में से एक विमेन वाला, एक ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जब इतना सब कुछ देखा तो व्हाट डिड दे डू इज दे अडॉप्ट. ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, ये बाद में ऐड हुआ था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. बट फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. Like China has official religion as Buddhism, Pakistan has Islam, but we don't have any official religion. We practice secularism, लेकिन जो word secular था ये हमारा बाद में amendment में add हुआ. And this gives freedom to all the religions to practice, propagate or profess at their own way. But it should not disturb others. Of late there have been lots of, अगर आप यूएस में रहते हो, because I have my real cousins living in US, वो बताते हैं कि वहां पर आप दिवाली या होली ऐसे नहीं मना सकते हो जैसे हम मनाते हैं. दे हैव अ लिमिटेड टाइम, उसी टाइम के अंदर उन्हें पटाखे जो है वो कर सकते हैं. एंड पटाखों को भी दे हैव टू गेट इट सर्टिफाइड कि दे आर नॉट स्प्रेडिंग द फ्यूम्स. जबकि उनके यहाँ पर जब फंक्शंस होते हैं तो वो लोग पटाखे फोड़ते हैं. We cannot openly do it. If you go to Saudi Arabian countries, वहां पर आप अपने हिंदू उसको नहीं कर सकते हो. But in India, secularism says you have the right to practice, propagate and profess, but not to spread any kind of hatred. There should be no discrimination. गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलती है कि आपको जो है, इफ यू लुक इनटू द हॉलीडेज, आपको दिवाली की भी छुट्टी मिलती है, ईद की भी मिलती है, क्रिसमस की भी मिलती है, बुद्ध पूर्णिमा की भी मिलती है. They try to accommodate all the religions, but at certain times it becomes very important कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे जब उनको कोई एजुकेशन में अगर उनको लेकर आना है. जैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटीज कमीशन है, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आपका जो गुरु गोविंद स्कूल है, आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, सेंट स्टीफन आपका जो कॉलेज है, जीसस एंड मैरी आपका जो साउथ दिल्ली में कॉलेज है. ऐसे आपके स्पेशल जो है एस्टैब्लिश किए जाते हैं जस्ट ताकि उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं दे आर आल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स. इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन. If they are not getting the benefit, that benefit is given to them through that. So India is trying, but still I feel that we are not that much. Still there is lot to go. Unless and until we take out from our mind. Now comes a very unique, अब मैं देखो ऊपर लिखा हुआ है, it's written in your book also, caste system which you will not find anywhere. आपको जेंडर वाला भी सब जगह मिलेगा. आपको इफ यू गो टू साउथ ईस्ट कंट्रीज, वहां पे विमेन ज्यादा अच्छे से काम करती है. हमारे यहाँ विमेन का तो घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात होती
And if you talk about religion, definitely communal politics is there in all the religion, but caste system is only confined to India. This is because years back हम लोगों ने अपने जो काम है उसको हमने डिवाइड किया. आई रिपीट, हमने काम को डिवाइड किया था कि जो पढ़ना लिखना उन सबको हम ब्राह्मण्स के अंदर लेकर आते हैं. The one who are into the accounts and all that who would be taking to the, मतलब कि हमारा जो तीसरा सेक्शन है उनमें लेकर आते हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, all those who are taking the power or you can say the arms in their hand, क्षत्रिय. And जो आपके बचे कुचे काम होंगे they would be outcast, यानी कि shoot. And this system went on following till date. मैंने तो अपने घर के अंदर बहुत देखा है, बहुत ज्यादा. मतलब I have seen to this extent कि certain times I used to feel suffocated because we belong to the highest caste. जहां हमारे तिरुपति मंदिर में भी the first water is given to us. Still I used to think, why do we treat others like slaves? In my mother's house also before marriage, अब तो नहीं हूँ मम्मी ऐसी, and in my husband's house आज तक, that we are Brahmins. Okay, yes, we are Brahmins. We have certain privileges. We should be proud to be our privilege, but that doesn't mean we need to outcast others. But आज भी ये आपके पेपर में questions हैं, so these are the one. We don't, members of the same caste or same community like to meet together. आज भी इंडिया के अंदर लव मैरिजेस आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज वी बिलीव इन मैरिंग विद इन द सेम कास्ट. देयर हैव बीन पीपल लाइक अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, देन रामास्वामी नायकर. ये आपके पेपर में, आपके बुक में लिखा हुआ है. दे रेज देयर वॉइस यूजिंग द बुक्स, यूजिंग देयर बुक. बट यस, ये आपके दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, 3-3 मार्क्स के. कास्ट सिस्टम हैज अंडरगॉन चेंजेस, मतलब ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमें किसके बारे में क्या पता होता है? इफ यू लुक इनटू द कैटेगरी ऑफ अ फैमिली, आप उनकी पूरी फैमिली को निकाल के देखो, यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंसेस. Then because we are now educated, we are able to understand occupational mobility. पहले जमाने में नाई के दुकान जाना was considered a sin. आज हेयर स्टाइलिस्ट बनना एक प्रोफेशन है. पहले नाई की दुकान में जाने के, घर के अंदर आने से, क्योंकि वो तो घर भी ऐसे ही होते थे, बाहर ही कपड़े उतार के वहीं से, मतलब कि उसमें जाकर जल करके फिर उसके बाद घर आते थे. बट देन आज हेयर स्टाइलिस्ट इज अ वेरी फेमस. तो ऑक्युपेशनल मोबिलिटी ये आपकी बुक में साइड में लिखा हुआ है. देन हमारे यहाँ पहले जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो, बट स्टिल कास्ट हैज नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड. दिस आल्सो, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन में आते हैं, आए हैं. अभी भी लोग प्रेफर करते हैं विद इन द कास्ट. अनटचेबिलिटी हैज स्टिल नॉट एंडेड. टिल डेट वी आर हैविंग पीपल जो कि बिलीव करते हैं इन अनटचेबिलिटी. some groups, if you look into the हमारे जो हिस्टोरिकल में देखोगे ना, तो हमने हमेशा ब्राह्मण्स को पढ़ाई के लिए दिया. नेचुरल है कि उनकी पढ़ाई हो गई, दे केम अप. लेकिन अभी जो बाकी ग्रुप्स हैं, दे हैव नॉट येट गॉट दैट प्रिविलेज. और इसीलिए इंडिया के अंदर, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम टेलिंग यू, 27% जो रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट द सिस्टम बिकॉज आई नो, मेरी जो डॉटर थी, शी गॉट द बेस्ट रैंक, स्टिल शी कुड नॉट गेट इनटू द फर्स्ट कॉलेज बिकॉज ऑफ द जेंडर कैटेगरी.
बट दिस रिजर्वेशन सिस्टम को इसीलिए किया गया था ताकि वो लोग बेनिफिट लें, लेकिन ना तो वो बेनिफिट लेते हैं और ना हम बेनिफिट उन्हें देते हैं. दीज सीट्स आर सोल्ड ऑन प्रीमियम. आज भी हम इकोनॉमिक स्टेटस को एक कास्ट से रिलेट करते हैं. अब ये जो लिखा मैंने, देखिए इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके अलग अलग 5 मार्क्स में आए हैं. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. मतलब अगर कास्ट को पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उन्हें लगता है एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक एरिया में ज्यादा रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस एरिया में अपने उस कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस कास्ट को बिलोंग करते हैं, जस्ट टू टेक द वोट बैंक. सर्टेन टाइम्स दे अपील इन द नेम ऑफ कास्ट. ये तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो सबको इक्वालिटी मिलती है. एंड इफ यू लुक इनटू द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप कहो कि इस कैंडिडेट को सारे वोट्स अपने ही कास्ट के मिले थे, तो कभी नहीं होता. इट नेवर हैपेंस. एंड अगर ऐसा हो रहा होता तो जो रूलिंग पार्टी है वो कई बार हार जाती है. पीपल वोट बिकॉज दे वांट वर्क, बट ये तो था पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जब कास्ट सिस्टम को ऐड कर दिया जाता है तो हाउ इट अफेक्ट्स. ये है पॉलिटिक्स इन कास्ट. मतलब आजकल क्या है, कास्ट सिस्टम के अंदर ही नया पॉलिटिक्स चला हुआ है. बड़े बड़े कास्ट अपने साथ में छोटे छोटे कास्ट को निकाल, मतलब कि लेकर अपना सब कास्ट बना रहे. दे आर एंटरिंग इनटू कोalition सो दैट दे गेट इनटू पावर. नए नए कास्ट के ग्रुप बन गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड. पहले जो कास्ट थे ही नहीं वो पैदा हो गए हैं. दस कास्ट प्लेस डिफरेंट रोल्स इन पॉलिटिक्स. sometimes it gives space to disadvantages and sometimes it leads to tensions, conflicts and violence. अगर हम उसको एक सही तरीके से, अगर हम उसको वोट बैंक ना बनाए, if we don't make it as a vote bank, then definitely it will help us. लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई तुम इस कास्ट के हो, चलो हमें वोट दे दो, और वोट देने के बाद वेयर आर द पॉलिटिकल पार्टीज, वेयर आर दोस प्रोमिसेस, why those who are belonging to a particular caste or particular religion or particular area are not developed? क्यों ईस्ट दिल्ली इतना डेवलप नहीं है जितना कि साउथ दिल्ली है? क्यों some portions of Odisha or UP are still not developed? The question comes, and the answer is, when you are in democratic politics, whether it is gender, whether it is what we call as caste or religion, we need to, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला इक्वल ट्रीटमेंट दो, बट इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू ट्रीट देम इक्वली एंड गिव इक्वल. अभी देखो, हम लोग अगर रिजर्वेशन बोलते हैं तो रिजर्वेशन एक तरफ से जनरल कैटेगरी के लिए इट हैज बिकम अ कर्स. उनके लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए नुकसान जरूर हो रहा है. अगर इक्वालिटी होगी, इफ देर इज इक्वल, ओके यू आर, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कम गिव द एग्जाम, गेट द सर्टिफिकेट. अगर आप इस रैंक में आ रहे हो तो यू विल गेट, कितना आसान हो जाएगा. बट अभी हमारे लिए क्या होता है, हम 85% लेके आने के बाद हमें टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं मिलता, उन्हें 33% में मिल जाता है. दिस इज अ डिसएडवांटेज. My elder daughter, when she appeared for NIFT, her rank was 80th India mein. And there was one girl from Northeast, she got 800th rank. She got Delhi and my daughter got into Ahmedabad. Reason? System. तो ये सिस्टम को हमें हटाना है. Now it is too late. 1950 में these things were okay. बट अब हम 2023 में है, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक
appropriate steps, ये differences हटे, सबको equality भी मिले, at the same time no religion, no caste or no gender should feel discriminated. That is the entire summary of this chapter: gender, religion and caste. In the next class we would be doing the same with NCERT.